versus industry, we went into second. That was a public versus private sector, and we studied both the controversies with different examples and references. Then after that, we went into criticism. Criticism bhi dekha. And after studying criticism of different groups, there were two groups who criticized it on their level. One group was saying a completely different thing. Other group was saying a completely different thing. Both were opposite to each other. ठीक है? दोनों ग्रुप्स के क्या beliefs थे? What were the beliefs of both the groups? We also studied about that. Then after we came on to the major outcomes of all the planning done till 1962. Then overall view हमने पढ़ा था. Then after that we came on to new topic that was named as foundations. We studied foundations. कि भाई foundations क्या रखेगा in planning. Due to this planning objective, due to this objective of planning, what were the foundations which India gained? Then after that we came on to land reforms. In land reforms, we studied four major land reforms, and we also studied which land reform was successful and which land reform was not successful. And after which we also studied why this land reform was successful and why other land reform was not successful. We studied all kinds of reasons to prove all the aspects. Then after that, we tried to understand the reasons for the failure of land reforms on greater scale. We also studied rural landless labor was okay. So last topic was laws against eviction. Yani ki we studied four major land reforms, and after studying four major land reforms, we also understood that whether the particular land reform was successful or not. Now we have to come on to the reasons that, sir, despite of being a good objective, why land reforms on greater scale led to a failure. Land reforms क्यों fail हुए? First reason, rural landless was not mobilized. फर्स्ट लैंड रिफॉर्म यानी कि आप कह सकते हैं लैंड रिफॉर्म इसलिए कामयाब नहीं हुआ. पहला रीजन, जो गांव का ऐसा मजदूर था, यानी कि द लेबर लिविंग इन रूरल एरियाज हु वाज नॉट हैविंग एनी पीस ऑफ लैंड, जिसके पास अपना खुद का कोई लैंड नहीं होता था, ठीक है ना, वो मोबिलाइज कर ही नहीं पाया. यानी कि वो जहां फंसा हुआ था वो वहीं फंसा रहा. दैट वाज बिकॉज जमींदारी सिस्टम वाज स्टिल एट अ ग्रेट स्टेक, स्टिल इन अ ग्रेट होल्डिंग, क्योंकि जमींदारी सिस्टम अभी भी स्ट्रांग थी और इसीलिए रूरल लैंडलेस लेबर की कंडीशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया और वो मोबिलाइज ही नहीं हो पाया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसकी वजह से व्हेन द रूरल लैंडलेस लेबर वाज नॉट एबल टू मोबिलाइज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि दिस वाज द फर्स्ट रीजन व्हिच बिकेम अ प्रोमिनेंट रीजन फॉर द फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स. Second point, landowners were very powerful with a considerable political influence to their credits. Second point था कि आपने लैंडेड एरिस्टोक्रेसी को खत्म करने के लिए आपने जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया था. डिस्पाइट ऑफ एबॉलिशिंग सो ब्रूटल सिस्टम लाइक लैंड जमींदारी सिस्टम, लैंड ओनर्स उस सिस्टम के एबॉलिशमेंट के बाद भी पावरफुल थे. And as they were powerful, they were having a very great instance in the political areas also, जिसकी वजह से उनका political influence भी काफी strong था. और उनके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफी स्ट्रांग था, जिसकी वजह से उनका क्रेडेंशियल, उनकी क्रेडिबिलिटी अभी भी बहुत स्ट्रांग थी. यानी कि दे स्टिल वर द पॉलिसी मेकर्स इन द रूरल एरियाज. तो ये दूसरा रीजन था जिसने लैंड रिफॉर्म्स को सक्सेसफुल नहीं होने दिया, कि जब जमींदारी सिस्टम खत्म हो गई तो लैंड ओनर्स फिर भी पावरफुल कैसे रह सके. थर्ड पॉइंट, देना है सर कि लैंड रिफॉर्म्स इसलिए फेल हुए. ऑब्वियसली भाई जी, Sir, you were muted. नो आई एम अनम्यूटेड ना मैम. Sir, now you are audible. Okay ma'am, okay. So I think we were talking about the reasons of failure of the land reforms. So
फर्स्ट रीजन हमने पढ़ा, सेकंड रीजन हमने पढ़ा, देन आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ अबव टू रीजंस वी कैन से दैट कि इसका मतलब सर ये है कि ज्यादातर प्रपोजल्स जो लैंड रिफॉर्म्स को लेकर बनाए गए वो प्रपोजल ही बने रह गए, वो लॉ बन नहीं पाए। यानी कि एक चीज होती है ना, दिखाने के लिए आप कह दो अरे साहब ये चल रहा है आपके देश में, ये चल रहा है, और आफ्टर दैट लॉ वो बना नहीं। यानी कि मोस्ट ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स वर ओनली ऑन द पेपर, दे वर नॉट इनेक्टेड एज अ लॉ, वो लॉ नहीं बन पाए। और अगर कुछ लैंड रिफॉर्म्स लॉ बने भी तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, अगर इम्प्लीमेंट भी हो एक तो फेयर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। यानी कि आप समझ रहे हैं, द प्रॉब्लम वाज एट एवरी लेवल, एंड इफ नॉट दिस लेवल देन दैट लेवल, देन एंड नॉट दैट लेवल तो उससे ऊपर। यानी कि मोस्टली द प्रपोजल्स रिमेन्ड ऑन पेपर और दे रिमेन्ड अनइम्प्लीमेंटेड। सो फिर जब प्रपोजल्स बन के ना पेपर पे ही रह गए, इम्प्लीमेंट हुए ही नहीं, तो ऑब्वियसली भाई सक्सेसफुल कैसे आएंगे रिफॉर्म। नाउ यू से दैट कि सर द स्टेटमेंट व्हिच यू पास्ड अवे कि मोस्ट प्रपोजल्स रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स पेपर पे ही रह गए, लॉ नहीं बने, इसका फैक्ट चेक करिए सर, वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। So let's take the fact check of it. Economic policy depends upon the actual political situation of the society. कभी भी ये बहुत आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिशियंस ऑफ द वर्ल्ड मैक्स म्यूलर ने भी कहा है कि अगर आपको किसी भी देश की राजनीति की हालत देखनी है ना, या आपको ये देखना है कि इस देश में पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, तो आप उस देश की इकोनॉमी लीजिए। और उस देश की इकोनॉमी अगर आपको देखनी है तो यू गो इनटू चेक द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ दैट कंट्री। यानी कि किसी भी देश की इकोनॉमिक पॉलिसी जो होती है वो ये देखकर पता चल जाती है कि इस देश की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है। जैसी पॉलिटिकल सिचुएशन उस देश की होगी उसी हिसाब से उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी, ऑब्वियसली। तो आप कहोगे सर यहाँ इस बात का क्या मतलब है? लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। The dominant social group always effectively control the policy making and implementation in spite of some leaders willing to do some good in favor of the needy. इसका मतलब शायद आपको समझ जाना चाहिए था। अभी मैंने आपको क्या पॉइंट बोला? अभी जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट इकोनॉमिक पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन द एक्चुअल पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री। तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि इसका मतलब सर जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनी वो खराब बनी। फिर मैं कहूंगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग दैट इकोनॉमिक पॉलिसीज खराब बनी, आई एम जस्ट सेइंग दैट कि इकोनॉमिक पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द कंट्री। तो आप कहोगे सर मीनिंग क्या है इसका? द कंप्लीट मीनिंग इज कंप्लीट इटसेल्फ। क्या? कि सर पॉलिटिकल रोल में ऐसे लोग बैठे हुए थे जिन लोगों को उन लैंड रिफॉर्म्स में हमने अलग रखना था, ऐसे लोग पॉलिटिक्स में थे। यानी कि स्टिल द डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स वर इफेक्टिव in controlling and making the policies, and obviously they were also as same effective in implementing them. तो भाई जिनके खिलाफ हमें चीजें करनी थी, जिनको हटाना था हमें देश को सुधारने के लिए, वही लोग अगर देश को सुधारने वाले लॉज में भी बैठे हुए थे, बनाते वक्त भी बैठे हुए थे और इम्प्लीमेंट कराते वक्त भी बैठे हुए थे, तो ऑब्वियसली वो लॉज कैसे तो बन जाते, और चलो बन भी जाते तो वो कैसे पेपर पे आ जाते, और अगर चलो पेपर पे भी आ जाते तो वो कैसे लॉ बन जाते, और अगर लॉ भी बन जाते तो वो इम्प्लीमेंट कैसे हो जाते। यानी कि आप चोर को अपने घर की तिजोरी देके मतलब चाबी देके जा रहे हैं कि भाई ठीक है मेरे घर का ध्यान रखना, है ना। तो यानी कि भाई हमारे देश के अंदर लॉज को बनाने की जिम्मेदारी चोरों के ही हाथ में थी, इसलिए वो लॉज बनकर भी लॉज नहीं बन पाए, एंड दे नेवर गॉट इम्प्लीमेंटेड एट दैट लेवल एट विच दे मस्ट हैव बीन डन समथिंग गुड। दूसरी बात, उस वजह से आप कहोगे कि सर ऑल द पीपल इन पॉलिटिक्स या ऑल द पीपल इन पॉलिटिकल एरियाज वर बैड, तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं। सिंपल बात है, ना ही कोई चीज पूरी ब्लैक होती है, ना ही कोई चीज पूरी व्हाइट होती है। ब्लैक है तो व्हाइट भी होगी, व्हाइट है तो ब्लैक भी होगी। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, देयर वर आल्सो मेनी पॉलिटिकल लीडर्स हु वर इन द फेवर ऑफ डूइंग समथिंग गुड फॉर द कंट्री, डूइंग समथिंग गुड फॉर द पीपल, बट majority of the political leaders were in the favor of exploiting people। तो वो जो अच्छा करना चाह रहे थे वो भी अच्छा नहीं कर पाए। नेक्स्ट टॉपिक, द ग्रीन रेवोल्यूशन। प्री इंट्रोडक्शन, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्चुअली। इसके बारे में लोगों को जो पता है वो डिफरेंट है, और जो पता होना चाहिए वो डिफरेंट है, बट स्टिल वी विल टेक इट।
द ग्रीन रेवोल्यूशन प्री इंट्रोडक्शन। आप कहोगे मतलब प्री इंट्रोडक्शन मतलब आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस इन द कंट्री नेम्ड एज इंडिया या सिचुएशंस इन द एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी इंडिया बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन के या बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन रजिस्टर्ड इन इंडिया। तो यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से पहले भारत की सिचुएशन क्या थी, पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, 1960s द सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स। आपको ध्यान है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ये प्लानिंग बनाई गई थी कि हमें एग्रीकल्चर को बड़ा कामयाब बनाना है, and I think results were fairly good also, but in the second 5-year plan the results were very poor related to agriculture, and that's why after 1960 यानी कि 1960s में 60s मतलब 60 से लेकर 69 तक the situation of agriculture in India went from bad to better, better to baddest, baddest to worse। सीधा इस तरीके से एग्रीकल्चर गिरा है 60s के बाद। सेकंड पॉइंट, 1940s एंड 1950s। आप कहोगे ये अब 60s से पीछे क्यों ले जा रहे हो सर? लेट्स टेक अ फैक्ट चेक। 40s एंड 50s में रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज स्मॉलर देन रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। यानी कि आप समझ रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिफोर गेटिंग इंडिपेंडेंस 1940s के बाद से ही इफ वी क्रॉस चेक आफ्टर 1940s दैट इंडिया के अंदर 1940 के बाद से ही फूड ग्रेन के प्रोडक्शन का जो ग्रोथ का रेट था वो पॉपुलेशन के ग्रोथ के रेट से काफी कम था। यानी कि हमारे देश में पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रही थी उस रेट से फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था। कब से? 1940-41 से, जिसमें कि 1960s यानी कि नेक्स्ट 20 इयर्स फूड ग्रेन प्रोडक्शन के रेट में और कमी आ गई और पॉपुलेशन में आप समझ सकते हो उसकी बढ़ोतरी, उसके प्रोग्रेस में, उसके ग्रोथ में और इंक्रीमेंट हो गया। तो नाउ यू कैन थिंक कि विद इन दीज 20 इयर्स पॉपुलेशन ग्रोथ तो वैसे भी बढ़ रही थी और बढ़ने लग गई तेजी से, और विद इन दीज 20 इयर्स फूड ग्रेन प्रोडक्शन तो वैसे ही घटा हुआ था वो और घटने लग गया। तो यानी कि जो खाई इतनी बड़ी थी वो खाई इतनी बड़ी हो गई। नाउ यू कैन थिंक दैट कि क्या हालत हो गई थी हमारे देश के अंदर of what the condition of food grain production and the demand of the population who was demanding the production of that food grain production। खाने के लिए 10 लोग थे और खाना खाली 5 लोगों का था, ये कह सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट इन 1965 to 67 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इसीलिए पढ़ रहे हैं जिससे कि आफ्टर दैट व्हेन वी विल बी कमिंग इनटू ग्रीन रेवोल्यूशन देन इट विल बी कनेक्टिंग टू अस मोर फेयरली। In 1965-67 the country faced severe droughts। ऊपर से एक लोकोक्ति है, एक हिंदी में कहावत बोलते हैं कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, कि एक तो conditions were already very bad from 1940s, then after that those conditions became baddest after 1960, and after that in 1962 China war, in 1965 Pakistan war। तो मतलब बैडेस्ट से वर्स्ट सिचुएशन हो गई, और वर्स्ट के बाद भी क्या हुआ, सूखे और पड़ गए देश के अंदर कई जगह। यानी कि बिटवीन 65 to 67 द कंट्री फेस्ड सीवियर ड्राउट्स। बड़े लेवल पर सूखा पड़ा भारत के अंदर काफी एरियाज में उस टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट, विद 2 वॉर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस इन सपोर्ट। ऊपर से आपको पता ही है 2 वॉर्स हो चुके थे, हमारी फॉरेन करेंसी का जो पूरा एक्सपोर्ट था, पूरा जो हमारा स्टॉक था वो खत्म हो गया था लगभग, और हम फॉरेन करेंसी के भी एक्सचेंज क्राइसिस आ थे, जी वजह से 1 रुपया $1 के बराबर था इंडिपेंडेंस के टाइम पे। इतना लूटने के बाद भी वो 1 रुपया 30 मतलब 30 रुपया $1 के बराबर हो गया था। विद इन जस्ट 15 इयर्स और 16 इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस $1 became equal to 28 to 31 rupee, because our foreign exchange and our foreign exchange reserves were in negative. The stocks of foreign exchange reserves were in negative after the 2 wars faced by India। रिजल्ट क्या रहा? सीवियर फूड शॉर्टेज, साथ में फेमिन, यानी कि इसके रिजल्ट क्या रहे? खाद्य पदार्थों की भयंकर कमी प्लस जगह जगह भुखमरी। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे फूड ग्रेन प्रोडक्शन वैसे ही खराब था, और खराब हुआ और खराब हो गया, उसके बाद वॉर्स हो गए, उसके बाद सूखा पड़ गया। तो नाउ यू कैन थिंक ऑफ योरसेल्फ कि क्या सिचुएशन इंडिया में होगी।
तो फैक्ट चेक ले लेते हैं whether this thing is right or not. The food crisis was already prevailing. ये आप जानते हैं कि फूड क्राइसिस में कंट्री हमारा चल रहा था. Second point, therefore, nation became vulnerable to external pressures as depended on food grain to struggle upon. तो इसीलिए अब ऑब्वियसली कोई चीज आपके पास कम पैदा हो रही है, कोई चीज आपके पास अब इतनी कम हो गई है, फॉर विच यू आर डिपेंडिंग अपॉन अदर्स. ऑब्वियसली यू हैव टू डिपेंड अपॉन अदर्स. आपके घर में अगर दूध नहीं है तो सबसे पहले आप पड़ोसी के पास जाते हैं. तो वही कंडीशन इंडिया की हो गई थी कि नाउ इंडिया, जो आप इंडिपेंडेंस सो कॉल्ड आपको नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का मेकर बता रहा था, थर्ड वर्ल्ड का बादशाह बता रहा था, सुपर पावर बनने के सपने थे, विद इन जस्ट 15 years आफ्टर इंडिपेंडेंस this India faced a very high level food crisis due to which हम external pressures के लिए vulnerable हो गए. मतलब we were open to external pressures और external pressures हम पर आए भी. क्यों? क्योंकि हमें चाहिए था फूड ग्रेन्स, हमें चाहिए था खाना लोगों के लिए, और वो हमें खाना अगर उनसे चाहिए था तो ऑब्वियसली वो जो हमें बोलेंगे करने के लिए हमें करना पड़ेगा. एंड आफ्टर दैट ओनली वी कैन टेक फूड ग्रेन्स फ्रॉम देम. तो ऑब्वियसली वी बिकेम सच लाइक अ बेगर. हम भिखारी की तरह हो चुके थे. आप कहोगे एग्जाम्पल प्लीज. यूएसए पुश्ड इंडिया टू चेंज द पॉलिसी. लाइक यूएसए का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम. यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ यूएसए. यूएसए promised to India, yes, that we will give food grains to you, but you have to change your economic policies as per our demand. And India was bound to change its economic policies as per the demand of USA. और पॉलिसीज भी चेंज करने के रिजल्ट में वो जो हमें फूड ग्रेन्स दे रहा था वो भी उनका सबसे खराब क्वालिटी का था, जिसको हम बोलते हैं लाल गेहूं. वहां पे जानवर भी नहीं खाते थे. देयर एनिमल्स आल्सो डजंट, मतलब देयर एनिमल्स आल्सो यूज्ड टू ईट दैट व्हीट जो हमें अमेरिका देता था. तो आप समझ सकते हैं इंडिया की क्या हालत होगी. ठीक है. अब आप कहोगे सर इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं लगाए गए क्या? लेट्स सी व्हाट वर द एफर्ट्स बीइंग डन. फर्स्ट पॉइंट, India changed and inverted its earlier ongoing policy to ensure food sufficiency within the state. First of all, the running economic policies in which Indian economy was surviving before this condition, all those economic policies were changed. All those economic policies were inverted and all those economic policies were to improve. उन सबको improve किया गया. So as to ensure food sufficiency. क्यों इंश्योर किया गया? जिससे कि पूरे स्टेट के अंदर इन इंडिया फूड सफिशिएंसी बढ़े. फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इंडिया विल बिकम अ फूड सफिशिएंट स्टेट. अब इंडिया विल बिकम क्या होता है? इंडिया तो पहले फूड सफिशिएंट ही था. ये तुम्हारी उल्टी पुल्टी इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से खत्म कर दिया देश तुमने, और फिर आज बैठ के आप मोदी जी को बोलते हैं. That's why India changed its policy. India inverted its policy to ensure food sufficiency. कि अब इंडिया फूड सफिशिएंसी में अब ठीक हो जाएगा, इसलिए पॉलिसी चेंज हो गई. Next point, more support started to be provided to the areas which already had good irrigation facilities with the farmers who were already well in condition, rather than supporting the farmers lagging behind, which was carried out before. Now you can ask me, sir, policy कौन सी change कर दी गई? Simple मैं आपको बोलूं, according to the first 5-year plan, it was planned that कि जिन फार्मर्स को इरिगेशन फैसिलिटीज की जरूरत है, जिन फार्मर्स को पैसे की जरूरत है, हम उन्हीं फार्मर्स की मदद करेंगे, सो एज टू गेट दोज फार्मर्स आउट ऑफ द पॉवर्टी सर्किट. ये फर्स्ट ईयर 5-year प्लान में था. टिल 1965 जब हालत इतनी खराब हो गई कि सूखा पड़ने लग गया, फूड ग्रेन प्रोडक्शन की सफिशिएंसी खत्म हो गई, स्टॉक्स एंड एक्सचेंज मतलब स्टॉक्स एंड रिजर्व्स ऑफ फूड ग्रेन्स कंप्लीटली वाइप्ड ऑफ, नियर बाय कंप्लीटली वाइप्ड ऑफ, और हमें बाहर से मंगाने लगे. तो आफ्टर दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थॉट दैट कि अब हमें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी. तो आफ्टर दैट द गवर्नमेंट मोटिवेटेड इटसेल्फ टू चेंज द पॉलिसीज. व्हाट ही डिड, अपनी पहली पॉलिसी को जस्ट उल्टा कर दिया. पहले तो उन किसानों की मदद करने की पॉलिसी बनाई थी कि जिनके पास कुछ नहीं है. अब गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई कि भाई कंडीशन बहुत खराब हो गई है, अब उस तरह के किसानों की मदद करके तो ओवरऑल हमें कुछ नहीं मिलेगा जिनके पास पहले ही कुछ नहीं है. तो इससे बेहतर तो हम ऐसे कुछ किसानों की मदद करते हैं जो पहले से ही वेल कंडीशन में है. तो उनकी मदद हम करेंगे तो कम टाइम के अंदर उनकी कम खर्च करके मदद हो जाएगी,
and with less expenditure they will be helped more, and with less expenditure they will be helped more. After that the food grain production will increase in much lesser time. अब ये कितना सही उन्होंने सोचा या कितना गलत उन्होंने सोचा, ये आप डिसाइड कीजिए। यानी कि दे डिसाइडेड टू हेल्प दोज फार्मर्स दोज ऑलरेडी वर इन गुड कंडीशन, दोज ऑलरेडी वर विद गुड इरिगेशन फैसिलिटीज। व्हाई? टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन एट अ ग्रेटर लेवल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रीजन क्या दिया? could help increase the production rapidly in lesser time, कि प्रोडक्शन बहुत जल्दी बढ़ जाएगा कम टाइम के अंदर और खर्चा भी कम होगा। दिस वाज द रीजन गिवन बाय द गवर्नमेंट। अब आप कहेंगे ठीक है सर, जो भी आप बता रहे हैं पॉलिसी चेंज कर दी, बट टू चेंज दिस पॉलिसी व्हाट वर द ऑफरिंग्स गिवन बाय द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ने क्या क्या दिया किसानों को, ये तो बताइए। देख लेते हैं। फर्स्ट प्रोवाइडेड HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, केमिकल की बनी हुई सीड्स थी जो जल्दी आप बो सकते थे, विच यू कैन मतलब विच यू bow very quicker level, and after that they were to be incited the soil at greater level, जो आप बो भी अच्छी तरीके से कर सकते थे और बोने के बाद आप उसको आप इरेज में यानी कि एक्सटिंक्ट भी अच्छी तरीके से कर सकते थे। सेकंड, फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स वर देयर। थर्ड, पेस्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स वर देयर, एंड बेटर इरिगेशन एट हाईली सब्सिडाइज्ड रेट, and better irrigation facilities are provided to the farmers with subsidized prices। subsidized मतलब टैक्स हटा दिया उस पे से, जैसे गैस की सब्सिडी होती है वैसे ही उन्होंने सब्सिडी लगानी स्टार्ट कर दी इरिगेशन फैसिलिटीज पर कि 20 रुपए का पानी आपको 4 रुपए में मिलेगा, आप खेती करो। पहले सीड जो थी वो नेचुरल थी, अब इन्होंने केमिकल की सीड्स बांट दी, केमिकल के फर्टिलाइजर्स बांट दिए, केमिकल की इंसेक्टिसाइड्स बांट दिए, सब सस्ते दामों में बांटे। करो। गारंटी टू बाय द प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर्स एट द लेवल गिवन प्राइस। देन फार्मर ने गवर्नमेंट से फिर पूछा कि ठीक है सर, आस्किंग अस टू इंक्रीज द प्रोड्यूस, यू आर आस्किंग अस टू इंक्रीज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ 3 years in 1 year, of 10 months in 3 months। ठीक है हम करते हैं, बट हु विल बाय इट? खरीदेगा कौन? तो गवर्नमेंट ने उसकी भी इंश्योरेंस दे दी कि आप तो पैदा करिए, हम खरीदेंगे, और चिंता मत करिए, हम जो खरीदेंगे आपको उसका सूटेबल प्राइस भी देंगे। We will purchase your food grains, we will purchase your crop, we will purchase your produce at a suitable level, at a suitable rate, which you should get. Note, thereby leading to the beginning of a new era termed as the Green Revolution। और इस नए दौर को नाम दिया गया द ग्रीन रेवोल्यूशन। ये नाम इंदिरा गांधी जी ने खुद दिया था, और जो उस वक्त जो इंदिरा गांधी जी बोलती थी उसको पूरा देश मान लेता था भाई, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम a slogan was very famous कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। अब ये रेवोल्यूशन थी या कुछ और था, आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट। द चैप्टर विल बी कंप्लीटेड टुमारो। यू कैन डू द रिलेटेड क्वेश्चंस related to this, short answer questions। in short answer questions you can do all the questions nearby। in long answer questions also I think you can do question number 1, question number 2, question number 3 and question number 4, and multiple choice questions can also be done। So please come on to the doubts please। I'm saying doubts, okay, come on to the doubts। Juhi ma'am, the lecture is over, kindly unmute the students। Sir, I am stopping the recording. Okay ma'am, okay, yes Juhi, okay, Rohit, okay, Harshita, Devan